So welcome all of you all for a Sunday morning Bhagavad Gita class. So we have just started with the 8th chapter. So just giving a recap, just a 2 minutes recap of what we did last week. We studied the last verse of the 7th chapter, where Lord talks about 3 funny terms which even Arjuna has not heard: Adi Deva, Adi Yagya, and Adi. What was the third one? Adi Bhuta. So all the 3 terminologies he is using, and he is saying one who knows all this will come to me, will know me. Now Arjuna is confused. Why is confused? Because he is listening with focus. So that's why questions उसके दिमाग में आएगा जो फोकस से सुनेंगे. जो फोकस से नहीं सुनते उनके दिमाग में कभी क्वेश्चन आता ही नहीं, है ना. कई बार ऐसा होता है ना, क्लास के बाद मैं पूछता हूँ कोई क्वेश्चन है क्या, कोई मुंडी हिलाता नहीं है. क्यों? ध्यान से सुना ही नहीं है. अगर सुनेंगे तो कुछ ना कुछ डाउट आएगा दिमाग में. सुनना और एनालाइज करना, सुनना भी काफ़ी नहीं है, एनालाइज भी करना पड़ता है. उसके बारे में सोचना पड़ता है कि मैंने क्या सुना, उसको एनालाइज करना पड़ता है. सो Krishna celebrity spoke this and he is silent. Now Arjuna immediately stops. Wait. What did you speak? I did not understand what you speak. Please explain these terminologies to me. And then Krishna talks about those terminologies. And then he explains who is Adi Yagya, who is Adi Deva, who is head of all the Devatas is Adi Devata. Adi Bhuta means what which is keeps on changing. That is called as Adi Bhuta. This material world is always changing. This material body is always changing. Everyone was born with 2 kilos, 2.5 kilos. No, nobody is 2.5 kilos. काफ़ी मल्टीपल्स हो गए सब लोगों के. 2 डिजिट से कोई 3 डिजिट्स में भी पहुँच के. So what does this mean? Changing. So this is Adi. And Adi Yagya means who is the actual enjoyer of all sacrifice. तो ये 3 terminology explain किया. And then he said, then this shloka number 5, अंत काले च मामेको स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रायति समद्भावम यातनात् संशयः. He is saying अंत काल, at the time of death, मृत्यु समय में माम एव, मुझे अकेले को जो स्मरण करेगा, यह प्रायति समद्भावम, ये एट एनी कॉस्ट, यातनात् संशयः, मद्भाव मतलब माई नेचर और माई व्हाट डू यू से, कम टू मी, विल कम टू मी. नाउ माई नेचर का मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था लास्ट लेक्चर. व्हाट इज द वर्ड ऑफ माई नेचर? मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, याद है? यू विल अटेन माई नेचर. ओके, आई विल टेल यू. तन्विता माता जी हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन. चलो, किसको आंसर याद है? You know, if I give a question paper, na, the tragedy will be nobody can copy also. भाजी को कोई मालूम नहीं क्या कॉपी करेगा. कॉपी करने के लिए भाजी वाले कुछ मालूम होगा तो तुम कॉपी कर सकते हैं. He is looking at you, you will be looking at him. क्या लिखो? I am telling you specifically who is the person who asked this question and I gave an answer. फिर भी रिलेशन नहीं हो रहा है सबका. All focus in प्रसाद. बोलो. हाँ, इशारों में बातें हो जाती है ना. हस्बैंड ऐसे इशारा करता है, वाइफ समझ जाती है, यार ये करना है, अभी क्लास छोड़ के भागना है गपचुप. पहले वाइफ निकलेगी, 2 मिनट के बाद हस्बैंड निकलेगा. अभी याद है ना. हाँ, वो सब मतलब कॉपी करने में आई हैव टू हेल्प यू ऑल. Sorry. So I have to explain that also. So the bottom line is Mad Bhavam. I gave a story of Guruvayurappan. How many of you will remember that? 2 boys. They came to the Lord. This is a true story of Guruvayurappan. They came to God. God से मंदिर में चढ़ाया हुआ पैसा रहता ना, उसमें से 2 पैसा चुरा लिया. उस ज़माने में 2 पैसे को काफ़ी कीमत, चुराया. एंड दे वेंट एंड बॉट 3 बनाना सॉर्ट ऑफ. ठीक है.
one each and one for the Lord. So came and they led the banana to the Lord. So this pujari saw. पूजा बोला तुम चोरी किया ना, हाँ, punishment, go around the temple 10 times. ठीक है ना, temple is quite big, it's not इतना छोटा नहीं, quite big, run. So the both children started running around the temple. After one round, second round, the pujari is seeing 3 people are running. 2 जन बोला रहे, तीसरा बच्चा कौन भाग रहा है? ठीक से देखा, then it was God himself. He said, hey, wait, why are you running, oh Lord? I gave punishment to these boys because they stole the money, but why are you running? Lord said, no, I have accepted that fruit, no? So I have to accept the punishment also. This is attaining my nature. This is how you understand by attaining one's nature. Bhava. This is what you become one with God. You know, many times a husband leaves a habit, or it might be a vegetable also, just because his wife or his children don't like it. Vice versa, the wife also adapts to the likings and dislikings of the family. This is coming to one nature. इसके लिए एंड में क्या होता है, कुछ शादी के कुछ साल बाद, अगर सर्वाइव हो गया आजकल के तरह, इफ आई टॉक इन टुडेज टर्म्स, इफ इट सर्वाइव्स, वो बड़ा मुश्किल है. दैट डे आई गॉट ए न्यूज़, a doctor couple married, within 24 hours they realized that they are not made for each other. Super fast diagnosis. Doctors थे ना, they could diagnose so fast. Within 24 hours they realized that they should divorce. 24 घंटा नहीं टिका. मतलब अभी थोड़े ना घंटों में देखना पड़ेगा, नॉट इवन पहले ईयर्स, पहले लाइफ टाइम का बात होता था. ये जन्म मेरा आया है, डोली यहाँ आएगी, अर्थी यहाँ से उठेगी. That used to be the thought process. After years, from lifetime, it became years. From years, it became months. But days के बाद अब hours, 10 minutes. मतलब शादी का हॉल में डाइवोर्स हो जाएगा लगता है. Sorry. So the point is, if a marriage stands, you generally then एक स्टेटमेंट आता है, पीपल हमारे घर पे हम लोग 9 बजे खा लेते हैं, हमारे घर पे 8 बजे खा लेते हैं, हमारे घर पे हमारे घर पे ये सिस्टम है, सुबह रोटी सब्जी रहेगी, हमारे घर पे ये सिस्टम है कि रात को एकदम लाइट रहेगा, ये हैवी, व्हाट इट इज. द पॉइंट इज दैट इज वन भाव, वन वे, इन वन लाइफ स्टाइल एवरीवन अडैप्ट्स in due course of time. Might be the husband's lifestyle may be different, the wife's lifestyle may be different, but coming together, it becomes one. This is what we call as attaining God's nature. अगर ये एक शब्द को अगर समझना है, मद भावम, भगवान बोल रहे ना, मेरे भाव को लाएगा, मतलब he will become one with me in the thought process. Similarly, हो गया. So whoever at the end of his life quits his body remembering me alone attains my nature. Of this there is no doubt. Now यहाँ पे अंतकाल means simple word is death. Let's take one more verse and then we'll discuss a little more. यम यम भावी स्मरणम भावम त्रजात अंतकालेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. Please read the translation. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. मतलब मृत्यु के समय में जो भी याद करेगा, he will come to that state. What do we understand from this? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, जड़ भरत का स्टोरी, वो डियर के साथ आसक्ति हो गई तो डियर बना. मतलब अंत काल में जो भी चीज़ को आप स्मरण करोगे या उस भाव में जाओगे, आपका उस तरह का भाव मिलेगा. ना यहाँ पे
the law of karma also takes into picture. Let's say you are having a very nice pet dog, एकदम लाडला, बिस्तर में आपके साथ सोता है, you know, very nice, very dear. I'll tell you a true incident. This happened with one of Rupalas Prabhu ji का एक relative या कोई distant relative ऐसा कुछ था. तो they were attached to that dog so much they were attached. And tragically अपना वो एयरपोर्ट अपना एरोप्लेन गार्डन है ना, वो सिग्नल पे रोड क्रॉस करते हो गाड़ी ने उड़ा के कुत्ता मर गया. Believe it or not, in a period of less than 3 months, the owner also died. Only out of shock. Only out of shock. So what is the problem? There is nothing worthwhile to get attached in this world. Why? A dog, even any family member, husband, wife, mother, father, anyone. None is worthy of it. The reason is, chalo mar gaye, from this worldly point of view, story over. Barabar? The minute you die, what is Lord saying? That type of nature you will get. So let me go back to the example. Let's say you had a dog and you loved the dog. And let's say you got a heart attack and you're dying. At the time you're remembering, मेरे dog से मैं दूर हो रही हूँ, डुब. Next जन्म क्या मिलेगा आपको? But the law of karma comes into the picture. That decides whether you will be signal का कुत्ता or Mercedes का कुत्ता. The law of karma will work, and that will decide whether you will be given a dog's birth either in the road or some nice and there are dogs in the hilly region also, minus 10 degrees में भी आपको get पहाड़ी कुत्ता. They are furry little, but how much torture they have to bear because of their weather condition. But they don't wear sweaters and all that, thermals. How much of torture they have to bear. The birds, animals, habitats, what they have, the sing lifestyle. My daughter had gone for Spiti, and a very fine example. She was talking about the law of karma. No doubt, the people are very active over there. There is no source of water. Water has to come from somewhere below to up. 60-year-old lady carrying water and climbing in that temperature, where she is saying, I am not having enough oxygen for my breathing. Those localites are day in and day out, they are carrying this water and everything has to be carried. Nothing can come up. So they literally carry it and they go up. They are healthy, fit, fine. But is it not a torture? We have to thank God कि what birth we have got over here. We always crib. क्या है? बेकार जिंदगी है, ये वो करके. अरे उनको देखो. Then you will realize, of course, you have done some good karmas. That is why you got a nice royal or a better birth. But how long? ये जीवन है तब तक. Then after that, your new chapter starts, and the new chapter starts with respect to your old karmic reaction. आपका जो karmic reaction है उस हिसाब से the new chapter will start. That is the fear we all won't want to die. कहते हैं ना, कहावत है ना, मौत सामने है तो बिल्ली भी पंजा खोलती है, बोलते हैं ना, कहावत है. मैंने a cat doesn't want to die because it is very well aware जो है is better than what is there in store for me. That is why you see in Ramayana, ऋषि सुतीक्ष्ण, ऋषि शरभंग, ये सब ऋषि को इंद्र आए, चलो आपने इतना तपस्या के लेके जाता हूँ. बोले नहीं रामचंद्र जी आ रहे हैं, हम उनको मिलेंगे. वी विल मीट रामचंद्र जी. वाई? क्यों रामचंद्र जी को मिलना है? अरे जब भगवान स्वयं दिखने दर्शन देने वाले, मैं अप्सराओं को देख के क्या करूँगा? Because anyhow that place is a place where punyas are over, I have to come back. It is better I see God and I go back to Vaikuntha or
साकेत धाम और गोलोक धाम, वेर इट इज, एज पर योर भाव, एज पर योर रिलेशन. So the point is, whatever your type of consciousness you have at the time of death, that type of next nature you will get in the next birth. But that nature is again subjected to the law of karma. अगर आपके कर्म अच्छे थे, आप लोग क्या बोलेंगे, प्रभु जी ये जन्म में मैंने बढ़िया कर्म किए, मैं मरने को तैयार हूँ. बट हाउ मेनी बर्थ्स हैव वी ऑल टेकन इन टोटो? आज तक कितने जन्म लिए हमने? डू यू हैव एनी आइडिया? नोबडी कैन सी. हम भी अनंत काल है ना, भगवान भी अनंत है तो हम भी अनंत है. अनंत में कितना मनुष्य जन्म हुए, कितने मनुष्य जन्म में क्या क्या पाप किया, वो सब का हिसाब आएगा. एंड दैट टाइम वी डोंट नो. नहीं, वो दिन अगर भगवान ने जजमेंट डे में बोल दिया नहीं इसको ये जन्म में ना थोड़ा पाप ज़्यादा दे देना, रिएक्शंस ऑफ द पापा गिव मोर, पुण्य कम देना, पापा ज़्यादा देना, बनोगे आप एक लेपर, एक फिजिकली हैंडीकैप, समथिंग. These are not things to run away from. These are things to learn from and rectify our life. Change our life for good. जीवन में अपने आप को बेटर बनने का एक तरीका है. Now a small question comes. What is death? Is death required? अपेक्षा यू लाइक, अगर कोई आके बोले आपके पास और 10 साल है, 5 साल है, या 2 मिनट में आप मरने वाले हो, यू विल बी सैड, हैप्पी? अच्छा, बट यू हैप्पी? एवरेज. ऑप्शन नहीं है. ठीक है. अच्छा, वो टाइम पे आप किसको याद करो? फैमिली. फॉर व्हाट? मिसिंग देम. हाँ, ओके. जेन्युइन थॉट, मेरे बारे में क्या होगा. इसके लिए तो हम लोग सब LIC पॉलिसी लेते हैं ना, राइट? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, वो एक्चुअली भगवान ही है. जीवन के बाद तो जो मर गया, आपका पैसा तो घर वाले यूज़ करेंगे. हार चढ़ा देंगे आपको पर एक, जो कभी निकालते नहीं है, सूख जाते हैं, मगर निकालेंगे, मगर खुद पैसे का मालपुआ खाएंगे. अच्छा, you will feel sad and you will not feel like, I mean, you will remember your family members. But is there any benefit in dying? Benefit in dying? कोई फ़ायदा है मरने में? हाँ. So everyone is some किच-किच, right? Everyone has got his own set of problems. ठीक है, very good. तो आप निकलोगे इस किच-किच के, निकलोगे कहाँ जाओगे? नया किट में. हाँ. So that means what? Lord has given you the formula here. He is telling, whatever you remember, that type of birth I will give you. Please understand, this is the mistake we people do. You will be again born. अगर family members याद किया, you will be born again in the same house with the same family members, but this time your karma reactions may lead you to become a cockroach और a छिपकली, lizard. And यही घर वाले मार, यही घर वाले स्प्रे मारेंगे. मैं तुम्हारी बेटी अपेक्षा, पहचानो मुझे, बस टपक उल्टा गिरा. अच्छा, वो टाइम पे भी आप भाव में हैं, मेरे घर वाले समझते नहीं हैं, कुछ और घर में कुछ और बन के आओगे, चूहा बन के आओगे. खाना बना मिलेगा ना, वो लोग का खाना बना के रखे रहेंगे तो कचरा वचरा गिरेगा खाने के लिए, फिर वो लोग ट्रैप में पकड़ेंगे तुम, या रेड पॉइजन डालेंगे. सो व्हाट इज द कैच और व्हाट इज द मैसेज लॉर्ड इज ट्राइंग टू गिव? Whatever type means what? ये सब सोचने से फ़ायदा नहीं है. If I think about household people, if I think about my own members, if I think about my, my near and dear, whatever it is, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा समझो बहुत प्रॉपर्टी है,
बड़ा ज़मीन है, ज़मीन में अक्सर ऐसे ज़मीन में जहाँ गड़ा हुआ धन रहता है ना, तो वहाँ क्या मिलता है जनरली? सांप मिलेगा। क्यों मिल रहा है? वो मरा हुआ मालिक ही सांप बन के आया है, मेरा पैसा संभाल के रखते। एंड में उसको घर वाले मारते हैं। क्यों? पैसा चाहिए ना, वो लोगों को गड़ा धन चाहिए, वो लोग को थोड़ी तुमको रख के क्या करेगा, तुम बाप होगा, मार होगा, जो भी होगा क्या। सो प्लीज अंडर दिस इज अ सेट ऑफ 3 वर्सेस। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तो कलेवरम यह प्रायति समद्भाव यातना संशयः। देन दिस वर्स यम यम वापि स्वभाव त्यजत अंतकालेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। एंड देन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एवशिषि असंशयः। दिस इज ऑल 3 टोटल 3 वर्सेस का सेट है, बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। सो व्हाट इज द टेक फॉर द अर्लियर 2 वर्सेस? Verse number 5 and 6, what was the take? 8.5 and 8.6, what was the take? Before I go to the next verse. Yes, Praveen. Usually as per our consciousness at the end of our life, nature. Yes. That type of nature, that type of birth you will get. But that birth again is subjected to law of karma. हाँ अर्जुन। What happened to Sukruti and good karmas against our good? हाँ What happened to our Sukruti? Then हाँ तो आपको you may be born as a rat in the temple, no? You may be born as a cockroach in the temple. You may be chipkali in the temple. See, remember, human life is a gateway to exit. And here the message is very clear. For what is the first 8.5 क्या वर्ष है प्रभु? अंत काले च माम एव means what? Only me. ऑप्शन नहीं दिया, भगवान ने ऑप्शन दिया है। अंत काले च माम एव, नहीं मैं मेरा कुत्ते को भी लेके आऊँगा, मेरा बिल्ली को भी लाऊंगा, मेरा क्या जो भी है, मेरा मम्मी को, मेरा डैडी को, मेरा वाइफ को, हस्बैंड को नहीं। ये एक जन्म में तुमको एक सेट मिला है। सो मेनी एनिमल लवर्स। टू लव एनिमल्स इज नॉट बैड, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। यू शुड बी what is a concern or be merciful towards animals, because they got a lesser choice of life. You be happy, you be merciful on them, but दिमाग लगाओ, मन मत लगाओ, कि मन लग गया तो फिर मन भगवान में नहीं लगेगा। मन एक ही है भाई। मल्टीटास्किंग you can do in mobile, but at a time can you listen to a song, type a message and do something else? Can it possible? कितना भी स्मार्ट आपका फोन हो, आर यू स्मार्ट इनफ टू हैंडल 2-3 things at one time? You cannot. Why? The problem is, if you are typing an important email to your office, that time you are saying music भले पीछे बजता रहेगा, your game is working on, or let's say your something else is going on, some app is going on, but that one split second you have to cut off everything. You tell your wife, your husband, hey don't speak, मैं 5 मिनट डिस्टर्ब मत करो, मैं ईमेल टाइप कर रहा हूँ या whatever I'm doing it. Why? There is only one mind. You don't have multiple minds. You may think you are multitasking, but you are a biggest fool. You have got only one mind, and with that one mind you can focus on one. दिल एक को दे सकते हैं। अब दिल किसको देना है ये आप तय करो। You decide whom you want to give your heart to. Concern is different. As a father, I may be a concerned father. I may concern about my wife, about my children, about my students, about my so many other factors in life. Concern is different, but man, because all this is temporary. With the law of karma, as per the my past birth, I got one birth, जिसमें एक बाय बर्थ मिला तो मम्मी डैडी फ्री मिला,
फिर मामा काका चाचा ताऊ वाऊ जो भी है सब फ्री में मिले, चॉइस था। इफ यू हैड एवरीवन वुड हैव चेंज देयर मामा एक्सचेंज ऑफर में। चाचा को नहीं, हमारे एक चाचा बहुत किटकिट करते हैं, इसको एक्सचेंज करा लेते, नया लेते हैं मार्केट ना, राइट। या कोई मम्मी डैडी को भी एक्सचेंज करा लेते हैं आज के ज़माने में, तो बच्चों का बस चले तो, है ना, कैलाश अग्रीज विथ मी। that's the difference, that's the generation gap, Prabhu. So the bottom line is we don't have an option, जो भी मिला उससे हमको चलाना पड़ा। बाय तो एक सेट आपको मिला है, मम्मी काका ताता जो भी है आपको सब मिला। अब वो सेट को साथ आपको, इट्स लाइक यू नो किड हु इज प्लेइंग, यू नो, पहले ज़माने में खिलौना आता था, आजकल शायद आता भी नहीं रहेगा। नो यू गेट स्मॉल किचन सेट, है ना, एक छोटा सा कुकर, छोटा सा सिगड़ी, छोटा सा प्लेट एंड ऑल दैट। आई मीन हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड विद इट, है ना? हाँ देखा, हाँ खेलते हैं ना। और उसमें आएगा बच्चा बनाएगा, देख मैंने तेरे लिए पोहा बनाया, मम्मी के मुंह में डालेगा। हाँ, आई स्टिल रिमेंबर माई चिल्ड्रन यूज्ड टू यूज दैट, क्या बड़ी सौंफ, दैट यूज्ड टू बी द इंग्रेडिएंट। एंड वो रे मैं बनाया और पकड़ के मम्मी को खिलाने का, बदला ले रहे हैं ना, मम्मी खिला गया। सब ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन द चाइल्ड रियली गेट्स हंग्री, कैन ही ईट विद दैट? वाई? इतना देर तो खुश था, मैं ये बना रहा हूँ, दाल बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ, खेलने के लिए ठीक है, बट असली के लिए ओरिजिनल मम्मी के पास ही जाना पड़ता है, एंड मम्मी गिव्स हिम द एक्चुअल फूड। सिमिलरली ये जो प्रपंच है ना, ये जो दिया है ना एक सेट, वो लोग ही सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ किनसे मिलता है? अपनों से। दुख किससे मिलता है? अपनों से। धोखा किससे मिलता है? अपनों से। आर यू एवर कंसर्न? रास्ते में कोई जा रहा है आदमी, उसने आपको देख के है कुछ बोल के गया, तो कुछ दो चार गाली भी दे के गया, आप भी है दो चार गाली दे दोगे या बोलेगे पागल है छोड़। और यही अगर आपका घर वालों ने आपको कुछ बोल दिया, वही डायलॉग आपके घर वालों ने आपको बोल दिया, चलेगा? क्यों? मेरा कनेक्शन है भाई, वो मेरा बेटा है, बेटी है, बहू है, सास है, जो भी हो, मतलब आई एम कनेक्टेड, एंड दिस कनेक्शन इज अ कनेक्शन बिकॉज ऑफ दिस बर्थ, एंड दिस एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज दिस बर्थ एग्जिस्ट। द मिनट यू सीज, इवन दिस कनेक्शन ब्रेक्स। जैसे आप मरते हैं, आपका आधार कार्ड, इन पैन कार्ड, जो कार्ड है, सब बिकम्स इनवैलिड, these relations also become, you just maximum can become a photograph. Max what you have is a photograph. 1x2 का फोटोग्राफ, वो भी एक जनरेशन रखेगा, दूसरा जो मालूम नहीं कौन था ऊपर पे। हाँ, दो जनरेशन बाद देखे जाके देखो आप। How many generation photo you have got in your house? Tell me. Be honest with yourself. 2 generation. उसके पहले था ना, उसके पहले जनरेशन था ना, तभी तो आया है लोग। सिंपल राइट? इफ यू गो टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, they were there, but where is their, अच्छा their names are also not there. आज श्राद्ध में दे 3 जनरेशन का नाम लिया जाता है, ले लो नारायण ले लो, लक्ष्मी ले लो, हाँ कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? मालूम नहीं है लोगों को। हाँ गोत्र तो वो तो बहुत बहुत ट्रेजेडी है। So the point what I'm trying to make is, please understand, जो आप रिलेशन इस धरती पे समझ के रखे हो ना, वेरी क्लोज, मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा भाई, मेरा बहन, ये वो, एवरीथिंग इज क्षणिक, इट्स जस्ट टेम्पररी। दैट इज वॉट लॉर्ड इज ट्राइंग टू टेल यू, द डिफरेंस इन दिस वर्स, कि बाबा सोच लो, what you want to get attached to is your choice. I am not forcing you. You want to be attached to your mother, you want to be attached to your brother, you want to be attached to your child, you want to be attached to your pet, you want to be attached to your relatives, fine.
I am not forcing you, but I have already given the verse number 1. That is verse number 5. I have already told. Antakale cha mameva antakal, time of death. Time of death. Can you define what is time of death, Prabhu? What do you understand as time of death? The time when the soul leaves the body. Something more in the subtle science, subtle way. You're right, but something more in the subtle way. When the Paramatma leaves from the body. Change of dress, change of The most important is means one chapter closed. It is like, a child who goes to school. Let's say, is disgusted studying science. Science का एग्ज़ाम का लास्ट एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम है, लास्ट चैप्टर पढ़ लिया, क्लोज, जस्ट टू रियलाइज दैट अब मैथ्स का टेक्स्ट बुक चालू करना है, जस्ट टू रियलाइज दैट ही हैज़ टू ओपन नाउ द मैथ्स टेक्स्ट बुक. So he feels one chapter is, one subject is over, but a new subject is untouched. It is to start. Similarly, तो मुझे दिन में जब ऐसी स्थिति आती है तो कितनी बार ये कहते हैं अब मेरी मौत निश्चित है. जैसे एग्जाम का समय आता है फिर से अब मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मैं मरा. एग्जाम आए, अब मैं मरा. तो वही डेथ ऑफ टाइम है जिससे रियलाइज होता है कि अब मेरी परीक्षा की घड़ी है. परीक्षा की घड़ी है, ठीक है, तो ठीक है. दैट वर्स्ट पार्ट इज नॉट दैट. द प्रॉब्लम इज वो परीक्षा भी अंत परीक्षा नहीं है. दैट इज फर्दर 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 फर्दर. बट हियर द सटल साइंस इज डेथ मीन्स वॉट? इट इज द लास्ट गेटवे और द टिकट. इट्स लाइक ए जंक्शन पॉइंट. इट इज ए जंक्शन पॉइंट. न्यू बर्थ, go to heaven, go to higher lokas, go to hell, go to lower planets, or go to liberation. और लिबरेशन का डोर इतना छोटा है, बाकी सब हेल का डोर तो बहुत बड़ा है, भीड़ बहुत रहता है ना, उसका डोर बहुत बड़ा है. हेवन का ठीक है, मीडियम साइज. एंड नेक्स्ट बर्थ का डोर तो मतलब वो ऑटोमेटिक, मतलब कंटिन्यूअल है. इवन जो भी हेवन में जाता है वो भी आफ्टर दैट ही कम्स बैक टू द सेम डोर. सो नाउ आई टेल यू स्मॉल जोक. एक आदमी ने होटल खोला एंड वहाँ पे डोर पे लिखा, आप खाओ, पैसा आपका बेटा भरेगा. मतलब नो मनी विल बी चार्ज फ्रॉम यू. आप खाओ और पैसा कौन भरेगा? बेटा. तो एक आदमी गया खुशी खुशी, रोहित जैसा था, स्लो जा रहा था स्कूटर में, आ गया होटल में, आ गया. चलो अब मेरा शादी करूँगा, बेटा आएगा, वो भरेगा ना, अभी तो मैं खा लेता हूँ, मज़ा कर लेता हूँ. ठीक. जैसे डोर एंटर हुआ, वहाँ पे 2 डोर लिखा था सामने, वेज, नॉन वेज. डेफिनेटली इज़ ए वेजिटेरियन, ये डोर में नहीं जाऊँ, वेज वाला डोर. वहाँ पे वापस 2 डोर था, विथ ऑनियन गार्लिक, विदाउट ऑनियन गार्लिक. तो क्या चूज़ करेगा? हाँ, विदाउट. यहाँ पे वही जवाब वही देना पड़ेगा ना. नहीं, सबकॉन्शियसली क्या जवाब देता वो मेरे को देखने का था. सो ही वेंट टू द डोर ऑफ ईटिंग सात्विक भोजन एंड नॉन सात्विक भोजन. सो इस आई चूज द सात्विक भोजन. सात्विक भोजन में क्या? यू वांट उपवास और रेगुलर फूड. आज काय के लिए एकादशी नहीं है, आई हैव रेगुलर फूड. सो वेंट टू द रेगुलर डोर. वापस 2 डोर. There it is mentioning तीखा और नॉर्मल, मीडियम. टुडे आई विल हैव तीखा, थोड़ा चटपटा खाता हूँ, चटपटा डोर. वहाँ वापस 2 डोर. हाँ, वापस 2 डोर. एंड वो डोर पे क्या लिखा था? एक पेमेंट नाउ, पेमेंट मेड बाय योर सन. अरे यही तो मेरी मेन चीज़ था.
पेमेंट मैं क्यों करूँगा, मैं अभी पेमेंट नहीं करूँ, मेरा बेटा पेमेंट करेगा, ये दरवाजे से जाऊँगा, ये ओपन द डोर, देखा वापस रास्ते में आ गया हो। So what does this message give? What does this joke got to do with our life? You come back to the same cycle of birth and death. Please get this message very clear. Death is a doorway. Options lie with you, not with anyone else. Solely lies with you. You decide whether you want to go to heaven, whether you want to go to hell, whether you want to go back to Godhead, or whether you want to repeat the cycle of birth and death. So your activities decide where and how you will proceed. That is why Lord is giving you the trick. Again, Bhagavad Gita is a book of options, not a book of compulsion. There is no compulsions nowhere. In 700 shlokas, there is nowhere mentioned आपको non-veg नहीं खाना चाहिए. Forget about सात्विक and all. Non-veg नहीं खाना है, नहीं लिखा है. कहीं नहीं बोला कि दारू नहीं पीना है. कहीं नहीं बोला कि ये नहीं, मतलब there is no straight reference. But indirectly, an intelligent person will understand the clues given in that. No, like exam में clues मिलते हैं ना, important IMP देते हैं ना teachers. ये पढ़ के मतलब हाँ ये क्लू है, इसमें से कुछ आएगा तो ये पढ़ के जाएंगे. हमारे टीचर देता था IMP से, एंड में देखो पूरा बुक दे दिया. हाँ वो हम बोला वे को हैप्पी IMP देखा, ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, पूरा बुक आ गया. मेरे इसमें क्या है IMP, एक दो चैप्टर एलिमिनेट तो करना चाहिए ना. तो यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड, गॉड हैज गिवन यू ऑप्शंस बट विथ क्लूज. यू हैव द ऑप्शन. यम यम वापी, जिसको जैसे अपना स्मरण रखना है, यम यम एज पर केस टू केस. यम यम वापी स्मरणम भाव त्रयजयत अंत कलेवरम. आप प्रॉपर्टी करके मर सकते हो, आप मेरा बिजनेस करके मर सकते हो, आप मेरा पैसा करके मर सकते हो, आप बीवी करके मर सकते हो. यू हैव n नंबर ऑफ ऑप्शंस. कॉन्शियसनेस इज n नंबर. सो व्हाट डज दिस मीन? यम यम वापी, जैसा आपको, कोई स्पेसिफिक नहीं किया ये ही करना है वही करना नहीं बोल रहे. आप जैसा ऑप्शन रखोगे, अंत काल यम यम वापी स्मरण भाव त्रयजयत अंत कलेवरम. एट द टाइम ऑफ लिविंग द बॉडी, मृत्यु के समय जो शरीर जब छोड़ता है, वो टाइम पे जो कॉन्शियसनेस है, what consciousness you have at the time of living your body, that very type of body, that very type of life you will get. This is a very clear cut message and understanding from the Bhagavad Gita, which is no going round. हाँ, यम. No, see the Sanskrit shloka ka the royalness of Sanskrit. Yam, and then it is saying tam. Yam vapi smanam bhavam trajay tant kalevaryam tam evati kaunteya. वैसे जैसे वैसे तुम जैसे काम करोगे वैसा फल मिलेगा. सब्जेक्ट, सी दिट इज वेरी सब्जेक्टिव. आप आर्मी में थे, दो चोरों को, अपने दो आतंकवादी को मारा, ठीक है, उसके लिए आपको मिलेगा पुरस्कार. यही आप रास्ते में घूम रहे थे, किसी दो बेकसूर इंसान को आपने उड़ाया, उसका आपको नरक. तो यम तम जैसे करोगे तम. तो यम वापी स्मरणम तो त्रयजयत कलम तम एवति कौनते सदा तद्भाव. सदा मीन्स ऑलवेज, देयर इज नो एक्सक्लूजन. प्रवीण, दिस फॉर यू. मैं मेरा सुकृति, मेरा चैंटिंग किया थोड़ा बहुत, जो भी लंगड़ा मोड़ा चैंटिंग किया, हाँ, सोते चैंटिंग किया, थोड़ा बहुत भक्ति कर लिया, सॉरी, ये सब करने के बाद अगर एट द टाइम ऑफ डेथ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर गॉड, द होल प्रोसेस इज वेस्ट.
दिस आई एम आंसरिंग स्पेसिफिकली योर क्वेश्चन. मेरा सुकृति है, बट यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड इट. What is Sukriti? Sukriti means an option by which you have a chance to come to satsang, listen to the tricks of the Bhagavad Gita and get out of the cycle of birth and death. But you are not listening, you are listening, but you are not adapting. You are not adapting yourself to the law of karma, and that is why what is happening? Even though you have got a satsang, even though you have got the secret message, let's say a person going in the road, he doesn't know the secret message, he cannot apply. उसको मालूम नहीं हो मैं मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा प्रॉपर्टी, ये वो करके मर रहा है, ठीक है, उसको वैसा मिले. एंड व्हेन यू ऑल्सो से आई नो एवरीथिंग, प्रभु जी मैंने कथा सुना था, मेरे को मालूम है, थोड़ा बहुत मैंने भक्ति भी किया है, बट क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं, लगा हुआ है किसी चीज़ पे या किसी व्यक्ति पे या किसी पेट पे या किसी पे, तो क्या होगा? दो यू आर अवेयर इज नॉट इनफ. यू मीन टू से चोर इज नॉट अवेयर. अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसको सजा मिलेगी. इज ही नॉट अवेयर? फिर भी करता है ना. सो दिस इज अ मैसेज ऑल्सो टू ऑल डिवोटीज. भैया आप कितना भी भक्ति कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी अनुष्ठान कर लो, कितना भी आप मंदिरों के चक्कर काट लो, इफ यू डू नॉट फॉलो दिस वेरी प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, लास्ट चांस आएगा, जरूर आएगा, पक्का. डेथ इज इनएविटेबल, बट जिस दिन डेथ का मौका आया उस दिन ये साइंस नहीं आ रहा है, काम का नहीं. इट इज ऑफ नो यूज. इट इज लाइक यू गो टू अ डॉक्टर एंड डॉक्टर इज चेकिंग यू. द सिम्टम्स व्हाट यू से, आई नो आई हैड केप्ट इट फॉर ऑप्शन इन माई एग्जाम. मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया था, पढ़ा नहीं. अभी रुको, मैं जाके घर में जाके पढ़ के आता हूँ. एंड आप कर रहे चलेगा. इट इज़ लाइक दैट. जीवन में ये आज से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर आप बोलोगे हाँ प्रभु जी समझ गया, लास्ट मिनट आई विल रिमेंबर गॉड, आई विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग एल्स. आई ऑलवेज टेल दिस जोक, आई हर्ड इट. एक बार है ना, एक बूढ़ा आदमी था, उसने सब बच्चों को बुलाया, जानबूझ के उसने सबका नाम दामोदर, नारायण ऐसा करके सब भगवान का नाम रखा था बच्चों. आजकल पहले ज़माने में उसके लिए रखते थे, कम से कम अनजाने में कुछ भगवान का नाम तो आएगा. तो ही हैड केप्ट, सो ही हैड केप्ट द एंड ही हैज टोल्ड, देख जब मैं मरने वाला रहूँगा ना, तब तुम लोग सिर्फ भगवान का नाम बोलना, मैं भगवान का नाम बोलूँगा तो मेरा टिकट कंफर्म. एंड पूरा ज़िंदगी ही वॉज लिविंग ए नॉर्मल लाइफ, नॉट ए डिवोटेशनल लाइफ. वह भक्ति वक्ति नहीं करता था. भगवान बोला ओ भगवद गीता का ट्रिक समझ लिया है, वेरी गुड, फॉर्मूला मिल गया, मैं देखता हूँ. तो द मोमेंट ऑफ डेथ फाइनली अराइव्ड. ही ऑल्सो रिमेंबर्ड, यस नाउ आई नो व्हाट टू डू. इमीडिएटली ही कॉल्ड हिज सन, नारायण, दामोदर, ये वो करके भगवान बोल लिया. ठीक है, प्राण गया. बच्चे लोग भी जोर जोर से सीताराम 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 चिल्ला रहे. ठीक है, फॉर्मूला वर्कड. भगवान बोला अच्छा चीटिंग मेरे साथ. ही इज एक्टिंग स्मार्ट, आई एम डबल स्मार्ट. त्रिभंगी है ना भाई, 3 टाइम टेढ़े हैं, तू मेरे साथ टेढ़ा चल, मैं 3 से टेढ़ा. तो उसको लेके जा रहे थे अर्थी में, राम नाम सत्य है, लेके जा. भगवान अभी देख इसको ठीक करता हूँ. वापस उसका प्राण शरीर में डाल दिया. तो विद्या जी ऐसा ऐसा हिला, भूत भूत करके चिल्लाया. सब लोग परेशान. तो बेटे लोग नो बाय डिफॉल्ट दे पुट द थ्रू, दे लेफ्ट द पायर वेयर दे वर होल्डिंग. तो गिरने लगा वो. बराबर नीचे एक गधा खड़ा था. एक गधे भगवान ने प्राण ले लिया. भगवान ने प्राण ले लिया. सो दिस इज वेयर ए सुकृति हेल्प्स. लॉर्ड हेल्प्स यू
in remembering. He gives you a conducive environment. In fact, in Varaha Puran, Lord says, Varahadev ko Bhumi Mata, after lifting the earth from the Pralaya Jal and keeping it up, that time Varahadev, because of that, she becomes his wife. Varahadev becomes, the Bhumi Mata becomes the wife of Varahadev, विष्णु की पत्नी. इसके लिए धरती को भी विष्णु का पत्नी कहा गया है. तो she said, नो मेरे जो जीव हैं, मेरे ऊपर जो जीव जीते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? कोई कोमा में रहेगा, एट द टाइम ऑफ डेथ ही इज इन कोमा, वो कैसे आपको याद करेगा? और सम ऐसा सिचुएशन वेर ही इज नॉट एबल टू रिमेंबर यू, दैट टाइम लॉर्ड सेज, टेल्स वरा देवी, डोंट वरी, whoever has done devotion sincerely with an effort to remember me in the time of death. And how will you put that effort? By not getting overindulged in worldly matters. Not getting overindulged. ठीक है, काम करना है, जॉब करना है, ऑफिस ही भगवान है, मेरा बॉस ही भगवान है, नहीं गया, दैट्स ऑल, टच एंड गो. घर वालों के साथ टच एंड गो, वाइफ के साथ भी ऑल्सो थोड़ा दूरी, एकदम ओवर अटैच टू वाइफ, ओवर अटैच टू किड. रेस्पॉन्सिबिलिटी करो, प्लीज टेक केयर ऑफ योर किड्स, टेक केयर ऑफ योर वाइफ, योर फैमिली मेम्बर्स, दैट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. बट ओवर अटैच टू एनीथिंग इज डेंजरस. And then by living that type of life, detached life, at life where you are more focused on God, then Lord says, don't worry, even at the time of death, if he is in a state kashta pashana sannibham, he is saying, if he is lying like a log of wood, kashta means log of wood, pashana means like a stone, senseless, neti mam, I will take him, I will give him the remembrance and take him. आपका जो किया गया भक्ति है कभी वेस्ट नहीं जाएगा. Never, at no point will it go as waste. Lord says, if he is lying as a pebble, as a stone, or as a kashta, means as a wooden log, I will take him. Why? I don't want to be indebted. The next birth, if that same soul comes and asks, Lord, I did so much of devotion, but at the time of death I got unconscious, or I became a coma state, whatever it is. I could not remember you. That time Lord says, don't worry. If you can't remember me also, I will make you remember me and I will take you. Because he will not bypass the law. He will not bypass the law. But he says, I will follow the law, because law is for everyone. But मैं याद दिला दूंगा तुझे. तूने जो भक्ति किया मैं तुझे याद दिला दूंगा. By that you can remember me and you can come to me. I'll take you because I don't want to be indebted. मैं कभी भी तुम्हारा ऋणी नहीं रहना चाहता हूँ. वर्ल्ड में, in this world, you do serve anyone, they will say this was your duty. Your child will say, what you did great, this was your duty. You are my father, you have to take care of me, you have to provide me. Arey, you have bought me only an ordinary dress, you could have bought me a better dress, you could buy me a better car, you could buy me something better. This is the problem in the world. No one will be thankful. And the same applies to the father also, father mother also. बच्चा इतना मार्क लाया, तो इतना ही लाया. अरे इतना लाया काफ़ी नहीं है क्या? इतना किया ना काफ़ी नहीं है क्या? माँ बाप क्या बोलेंगे? इट्स फॉर योर ओन बेटरमेंट आई एम सेइंग. अरे कभी शांति तो रखो. नहीं, पर्सनल रिलेशंस आर ब्लरिंग अप. डोंट वरी, पीछे भी हो रहा है. आई कैन सी मल्टीपल प्लेसेस, आई कैन सी. You come and sit in this place, very nice place. You can see reactions and chemical reactions, everything. Sorry. So, the point which is very important over here is, please get this very clear. Whatever you do worldly, the wife will say, yes, it's your duty to take care of me. The husband will say, yes, you have to serve me. Wife will say, I have served you so well. So what done? You have done. That's your duty as a wife. You go and tell your boss, I didn't sleep whole night, I worked and prepared. So what? You're paying you for that. That's what you are supposed to do. So who is obligated?
None in this world is obligated. But who is one obligated? That is God. भगवान बोलते तू मेरे लिए इतना किया ना, मैं ऋणी हूं. तू इतना किया, मैं तुझको ये दूंगा. भौतिक चीज से नहीं. मैं तुझे भक्ति दूंगा, मैं तुझे और मेरे पास लूंगा. He wants to take us back to Him. But we are the dull-headed people who are happy exploiting this dirty material world, using this useless body, fit for nothing. It is only fit for devotion. और कुछ काम के नहीं. 4 किलोमीटर चल नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? ये शरीर के साथ यू कांट भोग भी नहीं कर सकते हो. कितना खाओगे? खाने में भी लिमिटेशन है. और माइंड ऊपर से स्पॉइलर, खा ले अच्छा खा ले, ठीक है खा लिया. 6 घंटे के बाद अंदर से आवाज आ रही है, honestly tell me, how many mummies get irritated after giving a full meal? After 4 hours the child, mummy bhook lage hai. I mean, all the mothers can understand this feeling, mother and father. अभी तो खिलाया इतना, पढ़. It's a story everywhere. The bottom line is, nothing can be made happy. Neither can you make this body happy, neither can you make your mind happy, neither can you satisfy this any end of any relatives. चाहे आपका मामा, चाचा, ताऊ, सबको आप खुश करने की कोशिश करो, अपने आप को खुश करने की कोशिश करो. फॉर लेट्स से यू आर अ वेरी सेल्फिश पर्सन, यू डोंट केयर फॉर योर वाइफ, किड, रिलेटिव्स, नथिंग, फ्रेंड्स, नन. यू ओनली caring for yourself. Still you are not able to satisfy your own self. What you will satisfy, in what way your race for satisfying yourself is also going to end you in a proper way. So mind you, death is a doorway. If you want to use this doorway correctly to exit from the cycle of birth and death, you need to do devotion with an understanding. Yes, the Lord has clearly said, yam yam, जैसे करोगे तम तम वैसे मिलेगा. ठीक है? Just I like to close today's session.